Hey everyone, this is Minakshi Karwa and you're watching Tip with Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So today we are starting with the revision of one of the most important as well as lengthy chapter of corporate laws, that is appointment and qualification of directors. This video is along with my handwritten notes which are summarized from an exam point of view. So this video is completely exam oriented. If you are having my notes, then it will be better efficient if you are opening the notes along with my video. And if you do not have, then I've given the link in description from where you can download my notes and then you can use it with this video. And if you don't want to use my notes, then whatever notes you have, you can use those notes along with this video. So let's start with this chapter, and this chapter ranges from section 149 to section 172. Starting with the very first section, section 149 subsection 1 talks about the limit of directors in all category of companies, that is public, private and one person. Public company minimum 3 directors, private company minimum 2, one person. The name itself suggests that it is a one person company, so minimum number of directors will be 1. Maximum number of directors in all type of companies will be 15. If you want to increase the limit from 15 to a higher number, then you will have to amend or alter your articles, and for that you will have to pass a special resolution under section 14, and then you can increase the limit above 15 and you can amend your articles accordingly. Next, talking about the DIN section. This DIN section is a bit in detail in your syllabus, but since this is exam oriented, so I have only taken the important sections of the DIN part, and accordingly this section says that if you want to be a director, then it is mandatory for a director to apply and get a DIN for himself. DIN is director identification number, and that number is mandatory for you to be a director in a company. This is said in section 152 subsection 3, and section 153 is the whole section which lies on the DIN part of the chapter. Next, coming to section 166, which talks about assignment of office of a director. Like if you are a director and you are holding your office and you are assigning in this office to someone else. What does assigning mean? Like मैं director हूँ and I am telling someone कि for few days you take my office, you function as director in place of me, and I'll do some my personal work. So this is completely void. This is not allowed, but the prohibition applies only when you are holding that office. For example, you are retired, resigned, or you have vacated the office, you're disqualified, anything. You're not owning that office currently, and then you're assigning this to someone else. So this prohibition does not apply here. This only applies when you are holding your office and you are assigning the office to someone else. So this is completely void, and if you do this, there is punishment. The punishment is minimum 1 lakh, which may extend to 5 lakhs. Next, coming on to the forms which are used in the DIN sections. These forms I have summarized in one place. They can be asked in MCQs, or you can write them in part of answer wherever DIN question is asked. So these forms are, if you are applying for DIN, if you are making an application for DIN, then you have to make in form DIR 3. If you want to change the details which you have given in form DIR 3, and then you have to change it and you have to intimate to CG, then that will be done in form DIR 6. And if you want to surrender your DIN, you do not want to be a director anymore, so you will have to surrender your DIN, then this will be done in form DIR 5. Coming on to the next very important section, section 164, which talks about qualification and disqualifications of directors. Why will a director be disqualified? There are some general grounds given for disqualification. That is, if you are unsound mind, if you are undischarged insolvent, if you are convicted by court of any offence which involves moral turpitude, or if you are sentenced to imprisonment for 6 months or more. अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा जेल हो गई है, और वो जो 6 महीने से ज़्यादा जब जेल हुई थी उस टाइम से अभी तक 5 साल खत्म नहीं हुआ है, if 5 years have not elapsed from that date of default which you had done and then you had been imprisoned, उससे अभी तक 5 years नहीं elapse हुआ है,
then you will be disqualified. And for this ground, that is imprisonment of for 6 months and then 5 years, for this ground if you have filed appeal, even if you have filed appeal, you are still disqualified. And if you have been imprisoned for more than 7 years, अगर 7 साल से ज़्यादा आपको कोई डिफॉल्ट से जेल हुई है, then you are disqualified for lifetime. आप लाइफ टाइम तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हो. Next coming, order disqualifying him for appointment as a director is passed by court and such order is for. ये सब grounds है, ये जनरल grounds में आते हैं. So the next ground is कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए और वो ऑर्डर अभी तक फोर्स में है, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड एज अ डायरेक्टर. अगर कॉल्स पे नहीं किए, इफ यू हैव नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर्स विच यू हैव हेल्ड एंड यू हैव नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर्स एंड ड्यू डेट ऑफ पेइंग दोज कॉल्स वहाँ से 6 months जा चुका है. इफ यू आर नॉट पेड द कॉल्स विद इन 6 months ऑफ द ड्यू डेट, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड एज डायरेक्टर. नेक्स्ट, यू आर कन्विक्टेड ऑफ डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी. सेक्शन 188 वाला डीलिंग रिलेटेड पार्टीज में आपने डील किया हुआ है एंड इन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 5 years अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया इन रिलेटेड पार्टी, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड एज डायरेक्टर. इफ यू हैड अप्लाइड फॉर डिन इन फॉर्म DIR 3, आपने एप्लीकेशन दिया था एंड इट गॉट रिजेक्टेड, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड डिन, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अ डायरेक्टर. नेक्स्ट, इफ यू आर होल्डिंग योर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 165(1), अगर आप 20 कंपनीज में, इफ यू आर होल्डिंग योर डायरेक्टर इन 20 कंपनीज विच इज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड. क्योंकि ये लिमिट है 165(1) में, ये लिमिट दी हुई है कि यू कैन बी डायरेक्टर ओनली इन 20 कंपनीज विच इंक्लूड्स पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. और सिर्फ पब्लिक कंपनीज काउंट कर रहे हो तो यू कैन नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज. एंड पब्लिक कंपनीज में क्या काउंट होगा, जो प्राइवेट कंपनी है बट इट इज होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, तो वो भी पब्लिक कंपनी में इंक्लूड होगी. भले ही वो प्राइवेट कंपनी है बट इट विल बी इंक्लूडेड इन पब्लिक कंपनी. सो पब्लिक कंपनी का लिमिट है 10, पब्लिक एज वेल प्राइवेट का लिमिट है 20, और ये लिमिट अगर क्रॉस किया है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड एज अ डायरेक्टर. नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. वो जो 1 था 64(1), वो दैट वाज जनरल ग्राउंड्स एंड दीज आर स्पेसिफिक ग्राउंड्स जहाँ पे आप जिस कंपनी के डायरेक्टर हो और आप उस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, आपके डायरेक्टर होते हुए उस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. ये डिस्क्वालिफिकेशन का इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो ये प्रॉब्लम से, सेक्शन 164(2) से अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तो आप इस कंपनी में जिसमें डिफॉल्ट किया एंड इन एनी अदर कंपनी इन विच यू आर अ डायरेक्टर, यू शैल नॉट बी अलाउड टू रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 years तक. आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, ना इस कंपनी में ना कोई और कंपनी में जिसमें आपने कोई भी और कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 years. और वो डिफॉल्ट्स क्या होंगे, द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 financial years तक. अगर आपने नहीं फाइल किया 3 साल तक, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज और, मतलब दोनों में से कोई एक भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया तो 164(2) एप्लीकेबल हो जाएगा. What is the next ground? The company has failed to repay the deposits accepted, or it has failed to repay the interest on those deposits, or failed to redeem the debentures on due date, or pay interest on debentures, or pay the declared dividend. ये सब काम करने में कहीं पे भी आप फेल हो गए फॉर 1 year, ये डिफॉल्ट आपने किया एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर 1 year, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. दोनों में से कोई भी एक हुआ तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा. बट अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एज ए नॉमिनी डायरेक्टर आपके कंपनी में अपॉइंट किया था, then this disqualification will not be applicable to that director. The nominee director which was appointed by PFI, Public Financial Institution, then it will not be applicable to that. Now a most important thing in this section जहाँ से बहुत बार question आते हैं is that कि when you see that these are the conditions कि इनमें से कुछ भी पे करना फेल हो गया तो द डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालीफाइड. बट इसमें एक ये कंडीशन नहीं है कि पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हम लोग इंटरेस्ट और लोन और फेल हो गए, ये 3 वर्ड देख लिया तो वी आर लाइक नहीं डिस्क्वालीफाई हो गया, पर ऐसा नहीं है, ये काउंट नहीं होता है उसमें. ये वाला द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस डजंट काउंट इन द अबव डिस्क्वालिफिकेशन. तो वो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो ये करना फेल हो गया है तो इज ही डिस्क्वालीफाइड और नॉट. सो ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड इन दिस केस. ये याद रखना जरूरी है.
अ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप अपने आर्टिकल्स के अंदर और भी ग्राउंड्स दे सकते हो। प्राइवेट कंपनीज को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो कभी कभी वो और भी ग्राउंड्स दे सकते हैं कि ऐसा कोई गलती किया तो डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, तो दैट इज अलाउड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। Next, coming on to Rule 14 provisions, which are additional part of Section 164(2) itself. उसके additional provisions है। इसमें 3 forms है, DIR 8, DIR 9, DIR 10। और DIR 8 किसके लिए यूज होता है? डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट इज डिस्क्वालिफिकेशन बिफोर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इज डायरेक्टर। कोई भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट रीअपॉइंट होने से पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन 164(2) में डिस्क्वालिफाइड हो या नहीं हो। ये कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म DIR 8 में। इफ अ डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड तो उसको इमीडिएटली रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द डिफॉल्ट में जो डायरेक्टर्स के नाम हैं और एड्रेसेस जो डिफॉल्ट में शामिल है उन सब के नाम और एड्रेस देने होंगे टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ डिफॉल्ट। दिस विल बी डन इन फॉर्म DIR 9। एंड देन DIR 10 में कोई एप्लीकेशन है जो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए है, तो उसके लिए फॉर्म DIR 10 में एप्लीकेशन देनी। नेक्स्ट, सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। अगर सेक्शन 164(2) में कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया है या फिर सेक्शन 164(1) में, इन शॉर्ट पूरा 164 जो डिस्क्वालिफिकेशन का ही सेक्शन है, इसमें कहीं पे भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया है तो डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर डायरेक्टर हु बिकम्स डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2) इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, देन हिज ऑफिस शैल बिकम वेकेंट इन ऑल अदर कंपनीज। तो बाकी सब कंपनीज में उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, बट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी शैल नॉट बिकम वेकेट। नेक्स्ट, जो ग्राउंड्स है और जिसमें ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, 2000 के अगर सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग 12 months ही इज एब्सेंट इन ऑल बोर्ड मीटिंग्स, देन ही विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस। इफ ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 184, सेक्शन 184 क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, तो वो पहले बताने का, जो भी मीटिंग हो रही है या फिर जहां पे भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और उस कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो ही हैज टू इन्फॉर्म द कंपनी फर्स्ट अबाउट हिज इंटरेस्ट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस सेक्शन 184, देन ही विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस। इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज, तो अभी मैंने जो बोला, अगर वो फेल हो जाता है टू डिस्क्लोज इन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, जो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, और अगर नहीं किया देन यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई डिस्क्वालिफाइड हो आप, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने आपको सजा दी है कोई या फिर कोई इल्जाम लगाया हुआ है आपके ऊपर, इफ यू आर कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट देन यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस। रिमूव्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स वगैरह ने मिलके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपको रिमूव किया, देन यू आर रिमूव्ड एज डायरेक्टर, यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस। An important point is no director shall vacate his office on the ground that he did not acquire shares. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टर ने शेयर्स नहीं लिया, ये स्टिपुलेटेड टाइम में आपको शेयर्स लेना था लेकिन आपने नहीं लिया उस कंपनी में शेयर्स, तो आर यू डिस्क्वालिफाइड और नॉट? देन यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक प्रोविजन था वो किस चीज पे था कि आपने शेयर्स ले लिया है लेकिन उसके ऊपर कॉल्स पे करना था विद इन 6 months, तो वो नहीं पे किया है आपने, वहां पे ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है। अगर शेयर्स ही नहीं लिया है तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर कि आपको शेयर लेना ही है उस कंपनी में। नो डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट एक्वायर शेयर्स इन द कंपनी विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड, देन यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट अ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, ये जो 2 कंपनीज हैं, हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15। अगर 15 से ऊपर जाना है तो क्या करना होगा? आर्टिकल्स अमेंड करना होगा, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी अंडर सेक्शन 14। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो और सेक्शन 8 कंपनी हो और ऐसी कंपनी हो जिसने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है आपने, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, यू कैन जस्ट इंक्रीज योर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन योर कंपनी विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। वो कंडीशन यही है कि डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए कोई कंपनी में। नेक्स्ट, सेक्शन 165 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सेक्शन 165(1) जो डिस्कस किया था, लिमिट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में जो लिमिट होती है उसका सेक्शन है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी 10 कंपनीज, 10 कंपनी से ज्यादा आप नहीं डायरेक्टर बन सकते हो,
पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला के 20 कंपनीज से ज्यादा यू कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन दोज कंपनीज. Private company, which is either a holding or subsidiary company of a public company, shall be counted in the limit of public companies. Those 10 companies के लिमिट में काउंट होगा वो. ये सब जो कंपनीज है, डोरमेंट कंपनी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट ऑफ 20. एक्सक्लूडेड है का मतलब क्या होता है कि अगर आप डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो या फिर आप इसमें सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर हो, तो वो हम आपकी 10 या 20 के लिए नहीं काउंट करेंगे. डोरमेंट के लिए सिर्फ 20 वाली लिमिट में आप नहीं काउंट करोगे. सेक्शन 8 में आप 10 और 20 दोनों में नहीं काउंट करोगे. And a person cannot be SSD. SSD means small shareholders director in more than 2 companies at the same time. Next, coming on to resignation of director, section 168. डायरेक्टर को अगर रिजाइन करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन नोटिस एड्रेस टू द कंपनी. रिटन नोटिस देनी पड़ेगी विच हैज टू बी एड्रेस टू द कंपनी कि मेरे को रिजाइन करना है. और डायरेक्टर को, और इसमें क्या है, डायरेक्टर और कंपनी दोनों को रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा कि रेजिग्नेशन हुआ है. डायरेक्टर क्या करेगा? ही विल फाइल इन फॉर्म DIR 11. क्या फाइल करेगा कि रिजाइन कर रहे हो एंड द रीजन फॉर रेजिग्नेशन, क्यों रिजाइन करना है वो भी फाइल. कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन एंड रीजन ऑफ रेजिग्नेशन टू बी फाइल्ड इन DIR 11 विद इन 30 डेज. विद इन 30 डेज, जब से ये डिसीजन लिया है कि रेजिग्नेशन लेना है, उसके 30 डेज में आपको फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को. कंपनी क्या करेगा? जब से नोटिस आया, जैसे ही नोटिस दिया ना डायरेक्टर ने, तो नोटिस आने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी विल फाइल टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म DIR 12 के रेजिग्नेशन हुआ है ये डायरेक्टर का. द कंपनी हैज टू फाइल टू द रजिस्ट्रार. रेजिग्नेशन कभी इफेक्ट लेगा? रेजिग्नेशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी और डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस. नोटिस में भी डायरेक्टर बोल सकता है ना कि मैं ये डेट से रिजाइन हो जाऊंगा, और हो सकता है कि वो जो डेट भेजी है उसके बाद में वो नोटिस पहुंची हो कंपनी के पास. सो विच एवर इज लेटर इज द कंडीशन. अगर आपने समझो 8 अगस्त बोला कि मैं नोटिस में 8 अगस्त है कि मैं 8 अगस्त को रिजाइन करूंगा, और उनके पास नोटिस पहुंची 11 अगस्त को, तो यू विल बी एक्सेप्टेड एज रिजाइंड फ्रॉम 11 अगस्त. आप 11 अगस्त से रेजिग्नेशन लिए हो ऐसा माना जाएगा, नॉट फ्रॉम 8 अगस्त, बिकॉज विच एवर इज लेटर का कंडीशन है. एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन. आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कंपनी को. कि इसका क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कंपनी ने ना रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया, सो नाउ इज द डायरेक्टर रिजाइंड और नॉट? ऑब्वियसली इज रिजाइंड. इसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है. ही विल बी रिजाइंड फ्रॉम द डेट जो मेंशन है नोटिस में, या फिर जब आपको नोटिस आई, विच एवर इज लेटर, तब से डायरेक्टर रिजाइन हो गया है. एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कोई सवाल नहीं आता है. Next, coming to section 162, appointment of director to be voted individually. What does this mean? कि सेपरेट रेजोल्यूशन होना चाहिए फॉर ईच अपॉइंटमेंट. अगर 2 डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं एक साथ, तो दोनों को एक एक रेजोल्यूशन, अलग अलग रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जाएगा. लेकिन अगर किसी को एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना है तो उसके लिए कंडीशन है. वो कंडीशन फुलफिल करते हो, देन यू कैन अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर इन सिंगल रेजोल्यूशन. व्हाट इज दैट? एंड वो जो मैंने हाथ दिखाया है, इट इज ओनली फॉर जनरल मीटिंग्स. ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टर का, अगर ये जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो रहा है, देन ओनली दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल. सिंगल रेजोल्यूशन अगर आपको पास करना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स का, एक ही रेजोल्यूशन से अगर पास करना है, तो उसके लिए देर आर सम कंडीशंस विच हैज टू बी फुलफिल्ड. व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज द रेजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट हैज टू बी फर्स्ट अग्रीड टू बाय द मीटिंग विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट. मतलब क्या कि कोई भी वोट जो है, अगर समझो जितने लोग प्रेजेंट हैं मीटिंग में, 10 लोग प्रेजेंट है, 9 लोग ही उसमें से वोट कर रहे हैं, 9 में से भी कोई भी अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए इस चीज के. सब लोग हाँ बोलने चाहिए. अगर सब लोग एग्री कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन पास इन अ सिंगल रेजोल्यूशन. एंड दिस शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. कंडीशन क्या है कि पहले ये मीटिंग में अग्री करवाओ सब लोग से कि हम लोग एक ही रेजोल्यूशन से पास करेंगे. ये चलना चाहिए. अगर कोई भी वोट अगेंस्ट में होता है, देन यू कैन नॉट अपॉइंट बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन. This will not apply to private and government company or subsidiary of government company if they haven't committed any default under section 137 and 92. I hope this is clear. Then section 152 subsection 6 and 7.
दिस टॉक्स अबाउट रोटेशन एंड नॉन रोटेशन. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रोटेशन एंड नॉन रोटेशन का. इसमें क्या होता है कि नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर. पहले तो हम लोग इसमें रोटेशनल डायरेक्टर्स ढूंढेंगे और उसके बाद में रोटेशनल में से कितने रिटायर होंगे ये देखेंगे. इसमें 2 स्टेप होता है. तो पहला स्टेप जो है, यू हैव टू फाइंड रोटेशनल डायरेक्टर्स. रोटेशनल डायरेक्टर्स विल बी 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स. टोटल डायरेक्टर्स में क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर जो PFI वो एक पहले भी पढ़ा था कि जिसको डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइड नहीं है, वो वाले नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड these two will not be included in the limit of total directors. For rotational directors ढूंढने के लिए जो टोटल डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसमें ये दोनों नहीं आएंगे. फिर जो टोटल डायरेक्टर्स है ना, उसका 2/3 निकालने का, उसका जो 2/3 अमाउंट आएगा ना, दैट इज रोटेशनल डायरेक्टर्स. एंड व्हाट आर नॉन रोटेशनल? अदर देन रोटेशनल इज नॉन रोटेशनल. नाउ बोथ शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग. हाउएवर द आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर मैनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल. अभी रोटेशनल नॉन रोटेशनल दोनों को जो अपॉइंट करना है ना, जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट करना है. लेकिन आर्टिकल्स में अगर कुछ और लिखा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स तो चलेगा. जैसा उन आर्टिकल्स में लिखा है वैसे आप कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट कमिंग इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है. इसमें क्या है, एट फर्स्ट एंड एवरी सब्सिक्वेंट AGM में 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स हु आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. कितने थे जो रोटेशन से जाने वाले थे? हमने रोटेशनल डायरेक्टर्स जो ढूंढे थे वो कितने थे? 2/3 थे. अभी वो 2/3 का जो अमाउंट है ना, उसका 1/3 विल बी the directors who are liable to retire in that first and every subsequent AGM में. वो जो 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स है उनके 1/3 लिए जाएंगे टू सी द अमाउंट विच आर लाइबल टू रिटायर. अभी इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 डायरेक्टर्स है, तो 5 डायरेक्टर्स में से पहले आपको रोटेशनल डायरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे 2/3. अभी वो जो 2/3 अमाउंट का जो डायरेक्टर्स आएंगे उसके भी 1/3 निकालने का. एंड दोज डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन इन फर्स्ट एंड एवरी सब्सिक्वेंट AGM. अभी वो जो 1/3 है ना, उसमें से भी कौन रिटायर होंगे? वो 1/3 एक डायरेक्टर थोड़ी होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. तो उसमें से कौन रिटायर होगा? दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस. 3 लोग हैं, 3 में से एक है जो अभी तक सबसे ज्यादा ऑफिस में था इन टर्म्स ऑफ टेन्योर या ड्यूरेशन. सबसे ज्यादा जो था वो सबसे पहले रिटायर होगा. और अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि 2 लोग हैं जो सेम टाइम पे अपॉइंट हुए थे, तो दे आर इन सेम टेन्योर, वो लोग दोनों हैं जो सबसे ज्यादा ऑफिस में थे, तभी क्या करने का? तभी इधर एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम, उन दोनों में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ कि भाई चल तू रिटायर हो जा, मैं नहीं होता तू हो जा, या फिर मैं हो जाता हूँ, उन दोनों में कोई एग्रीमेंट हो गया है तो उस हिसाब से होगा. एंड अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बाय लॉट्स से डिसाइड होगा कि हु विल रिटायर फर्स्ट. Then there is a very important case law, B.R. Kundra versus Motion Pictures Associated, which says that where AGM is not held up to last date, AGM की last date तक अगर AGM नहीं हुआ तो directors who are liable to retire at AGM shall vacate their offices on last date when AGM ought to have been held. समझो फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर को AGM होने का लास्ट डेट था, लेकिन AGM उस दिन नहीं हुआ. तो जो डायरेक्टर्स है, जो 1/3 ऊपर डायरेक्टर्स हमने कैलकुलेट किए ना, विच हु आर लाइबल टू रिटायर इन दैट AGM, वो लोग अपनी अपनी ऑफिसेज वेकेट कर देंगे, क्योंकि उस दिन AGM होने वाली थी. दैट वाज द लास्ट डेट फॉर AGM बट इट डिड नॉट हेल्ड. सो द लास्ट डेट व्हेन इट वाज ऑट टू हैव बीन हेल्ड, जिस दिन होने वाली थी उस दिन दे विल हैव टू वेकेट देयर ऑफिसेस. नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 152(7). यहाँ पे क्या है? इफ अ डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एट AGM. व्हाट इज रिटायरिंग डायरेक्टर? तो वो जो हमने 1/3 जो कैलकुलेट किया था, जिसमें से 1 हु इज लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, तो वो डायरेक्टर जो रिटायर होगा वो रिटायर हो गया एंड उसके प्लेस पे नया डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हुआ. देन क्या करना है? इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड एट AGM एंड वो कंपनी ने ये रिजॉल्व किया मीटिंग में कि हमको वैकेंसी नहीं फुलफिल करना है, इफ द कंपनी हैज रिजॉल्व टू नॉट फुलफिल द वैकेंसी, देन द AGM विल बी एडजर्न होगा सेम टाइम सेम प्लेस एंड नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस. एंड इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, देन नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, उस दिन AGM एडजर्न हो जाएगा. और उसके बाद क्या होगा? अगर एडजर्न AGM में भी
यू हैव नॉट रिजॉल्व टू फिल द वैकेंसी या फिर वैकेंसी नहीं फिल हुई एट जन एजीएम में भी, देन द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। रिटायरिंग डायरेक्टर को ही वापस रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर एट जन एजीएम में भी वैकेंसी नहीं फुलफिल की तो रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम टू बी रीअपॉइंटेड। उसमें भी कंडीशन है कि कब ऐसा होगा कि ही विल नॉट बी डीम टू बी रीअपॉइंटेड। उसकी ये कंडीशंस है वेयर रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट वॉज पुट एंड लॉस्ट। आपने रेजोल्यूशन दिया था रीअपॉइंट करना है ये डायरेक्टर को, बट इट वॉज लॉस्ट। उसके जो अगेंस्ट में जो वोट्स आए थे वो ज़्यादा थे एंड इट वॉज लॉस्ट, तो आप नहीं बन सकते वापस। यू कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अगेन। एंड इफ द डायरेक्टर हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड इन राइटिंग, उसने राइटिंग में लिख के दिया कि मेरे को वापस नहीं रीअपॉइंट होना है डायरेक्टर के लिए, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते उसको रीअपॉइंट। डिसक्वालीफाइड और नॉट क्वालिफाइड, वो डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गया है, नहीं क्वालिफाइड है, तो यू कैन नॉट अपॉइंट हिम। वेयर अ रेजोल्यूशन स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट, कोई भी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है उसके रीअपॉइंटमेंट के लिए, चाहे स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो नहीं, आप उसको नहीं रीअपॉइंट करोगे। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स मेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन इन कॉन्ट्रवेंशन, हमने सेक्शन 162 पढ़ा था कि कोई भी 2 या ज़्यादा डायरेक्टर्स एक से रेजोल्यूशन से नहीं पास होंगे, अलग अलग रेजोल्यूशन चाहिए। तो उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर आपने एक ही रेजोल्यूशन से पास कर लिया है 2 और मोर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, देन यू कैन नॉट अपॉइंट हिम, ही विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और ये 7, ये जो 2 सेक्शन है ये प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को नहीं अप्लाई होगा अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92। डिफॉल्ट नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल टू दीज कंपनीज। ये सब कंपनीज को ये सब कंडीशंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से अपना काम कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन 160 क्या बोलता है कि राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, मतलब वो जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा था उसको आपने रीअपॉइंट किया, उसके जगह पे कोई दूसरा बंदा जिसको रिटायरिंग डायरेक्टर का राइट नहीं है, वो वाला बंदा बोल रहा है कि मेरे को डायरेक्टर बनना है, तो उसके क्या राइट्स होंगे, उसको क्या, फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल इंसान, आपको डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करना है इन प्लेस ऑफ दैट रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है मुझे वहां पे अप्लाई करना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर वो बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव नोटिस ऑफ योर कैंडिडेचर and this notice will be given 14 days before the general meeting and you have to deposit 1 lakh or such higher amount with the notice। नोटिस देने का कैंडिडेचर का कि भाई मेरा नाम एड्रेस ये सब है एंड मेरे को डायरेक्टर बनना है, ये 14 डेज पहले देने का जनरल मीटिंग के, और उसके साथ 1 लाख रुपए का अमाउंट देने का, that is considered as a deposit 1 lakh or such higher amount with the notice, and this amount of 1 lakh will be refunded back to you if you are elected as a director or if you have got more than 25% of votes, total valid votes in your favor, you have got more than 25% of valid votes, then the amount of 1 lakh will be refunded back to you। एंड डिपॉजिट ही नहीं रिक्वायर्ड है, you are not required to deposit 1 lakh or such higher amount if you are an independent director or if you are a director recommended by NRC, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी ने बोला है कि भाई ये बंदे को डायरेक्टर बनाओ, उन्होंने सामने से रेकमेंड किया है, तो उस डायरेक्टर के लिए डिपॉजिट नहीं रिक्वायर्ड है। और अगर NRC नहीं है कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रेकमेंड कर सकते हैं, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि भाई ये बंदे को डायरेक्टर बनाओ, इफ अ डायरेक्टर इज रेकमेंडेड बाय BOD देन ऑल्सो डिपॉजिट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट रूल 13 क्या बोलता है कि कंपनी विल, अभी कैंडिडेचर का नोटिस आ गया समझो कंपनी को, तो फिर रूल 13 अप्लाई होगा वेर इन द कंपनी विल इन्फॉर्म द मेंबर्स अबाउट हिज कैंडिडेचर, जो भी नोटिस आया था और वो बंदा कौन है, उसके क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब उसकी कैंडिडेचर में होगा, वो इन मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी कंपनी। When will they inform? 7 days before the general meeting. And how will they inform? They will serve individual notices on members. सब members को individual notice दी जाएगी, and this individual notice is not required if you have given advertisement in vernacular and English newspaper में अगर advertisement दे दी है, then you are not required to serve individual notice on members. Next, coming to second proviso of section 149 subsection 1, that is appointment of women director. उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो आपको अपॉइंट करना ही होगा, देयर इज नो अदर लिमिट और कंडीशन। इफ यू, देन नेक्स्ट कंडीशन इज पब्लिक कंपनी। इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी तो उसमें 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज
पेड अप शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज टर्नओवर. पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, 10 करोड़ और मोर, एंड टर्नओवर इज 300 करोड़ और मोर. तो यू हैव टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर इन योर कंपनी. कब? और दिस ये जो लिमिट्स है 10 करोड़ एंड 300 करोड़, व्हेन इट विल बी सीन ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फिगर लिया जाएगा टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल का. कब अपॉइंट करना है? विद इन 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और इफ यू आर इन एग्जिस्टेंस ऑलरेडी, अगर आप कोई नई कंपनी हो तो आपके 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना है. एंड इफ यू आर इन एग्जिस्टेंस ऑलरेडी देन विद इन 1 year फ्रॉम 31st March 2015 31st March 2015 के 1 साल के अंदर अंदर यू हैव टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी इफ यू आर कमिंग इन टू दैट कैटेगरी. दोज 2-3 लिमिट्स. नेक्स्ट, वैकेंसी टू बी फिल्ड अप बाय बोर्ड. अगर वुमेन डायरेक्टर का कोई वैकेंसी हो गया है तो बोर्ड फिल करेगा नॉट लेटर देन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 months ऑफ सच वैकेंसी. अगर कोई बोर्ड मीटिंग है, इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो आ रही है वैकेंसी के, या फिर 3 months ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, उस वाली डेट को वैकेंसी टू बी फिल्ड अप बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अभी इसका अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आज 22 दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल 22 दिसंबर को वैकेंसी अराइज हो गई एंड उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग आ रही है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज ऑन 31st दिसंबर. तो या तो 31st दिसंबर को आप अपॉइंट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और वो नहीं हो पाया तो 3 months के अंदर अंदर आपको अपॉइंट करना है. विद इन द वैकेंसी का डेट का 3 months के अंदर अंदर यू हैव टू अपॉइंट द वैकेंसी, द वुमेन डायरेक्टर अगेन. नेक्स्ट सेक्शन 149, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कंडीशन क्या होगी? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है. तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड अदर प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो होना ही चाहिए. लिस्टेड में तो जितना भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके 1/3 आएंगे, और बाकी कंपनीज में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, public company having turnover of 100 crore or more, and public company having outstanding loan, deposit, debentures exceeding 50 crores or more. लाइक एक्सीडिंग 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा, नॉट 50 करोड़ और मोर, इट इज़ 50 करोड़ से ज़्यादा. अगर आपका लोन्स, डिपॉजिट्स ये सब है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 लगेंगे. टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, इतना है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना है कब? when you are a joint venture, you are a wholly owned subsidiary, or you are a dormant company under section 455, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, इंटरमिटेंट वैकेंसी टू बी फिल्ड अप बाय बोर्ड इमीडिएटली. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में भी कोई वैकेंसी हो गई है तो बोर्ड फिल करेगा. कभी? इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर में आप अपॉइंट कर सकते हो द वैकेंसी. नेक्स्ट, इफ ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर ऑडिट कमिटी है आपकी कंपनी में विच रिक्वायर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन अकॉर्डिंग, अभी तो क्या है मैक्सिमम 2 कर, मतलब दो ही डायरेक्टर अपॉइंट करना है, और उसमें 1/3, लिस्टेड में 1/3 करना है. लेकिन ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी के हिसाब से, ऑडिट कमिटी के प्रोविजन के हिसाब से अगर आपको कोई ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लग रहा है तो द लिमिट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली टू दैट नंबर. जितना उनको ऑडिट कमिटी में लग रहा है उतना एप्लीकेबल हो जाएगा. So next, coming on to section 149 subsection 6, the eligibility criteria of independence for an independent director. So this has been summarized into 2 pages, full big chart. If it'll be good if you are having that chart in front of you, so you can just open it with this video. So an independent director should not be a managing whole-time director or nominee director. He should not be a promoter. He should not be related to any promoter or director. He should not have any pecuniary relationship other than the remuneration or transaction exceeding 10% of his total income. What does this mean? कि कोई pecuniary relationship नहीं होना चाहिए other than, कौन सा allowed है, other than remuneration, जो independent director को जो कंपनी से मिलता है वो remuneration एक चलेगा. और अगर कोई transaction है एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम तो नहीं चलेगा. वो ट्रांजैक्शन जो है उसका इनकम 10% से कम होना चाहिए
though it is allowed. No transaction exceeding 10% of his total income at any time during immediately preceding 2 financial years or current financial year shall not apply. This shall not apply to government company if no default made under section 137 and 92. उसमें default नहीं है तो ये वाला section government company को applied नहीं है. Next, none of whose relative is holding security or interest any time during immediately preceding 2 financial year और current financial year. कोई भी relative security या interest नहीं hold करना चाहिए उस independent director का in this company. And he should not be indebted in excess of 50 lakhs. Same anytime during preceding 2 financial year या फिर current year में 50 lakhs से ज़्यादा indebted नहीं होना चाहिए वो. Next, he should not have given any guarantee or security in connection of indebtedness of a third party amounting to 50 lakhs or more at any time during 2 financial years or current year. किसी ने किसी थर्ड पार्टी की इंडेटेडनेस के लिए गारंटी नहीं दिया होना चाहिए 50 लाख या उससे ज़्यादा का. एंड देन ही शुड नॉट हैव पेक्यूनरी रिलेशनशिप or transaction of 2% of more of gross turnover or total income singly or in combination with other transaction. What does this mean? कि 2% of more of gross turnover और total income जो उस कंपनी का gross turnover या total income है उससे 2% या उससे ज़्यादा का इंडिविजुअल हो या इन एग्रीगेट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई अमाउंट का पेक्यूनरी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी से. Next, neither himself or any of his relative should not be the CEO or director of NPO that receives 25% of more of its receipts from the company or that holds 2% of more of total voting power. कोई भी ऐसा NPO जो 25% और मोर का रिसीट्स कंपनी से आता है उसको इस कंपनी से या फिर 2% और मोर का टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, तो वैसी कोई NPO का CEO या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नीदर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव. And he should not hold along with his relatives 2% or more of total voting power in the company. Next, he should not have been in employment, proprietorship or partnership in any 3 preceding financial years with the firm of auditor, company secretary or cost auditor of the company or any legal or consulting firm जिसने कंपनी के साथ 10% और more of gross turnover का transaction किया है, उनके साथ इनका कोई employment, proprietorship, partnership नहीं होना चाहिए independent director का. Next, he should not hold position of KMP or he should not have been in employment in any 3 preceding financial year. But if the relative is in employment, then this restriction shall not apply for 3 financial years. And lastly, he should hold or possess such other qualification as may be required. एंड ये सब जो हमने कंडीशंस देखा दैट ही शुड नॉट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर और ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ये सब किसका नहीं होना चाहिए? ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट और द डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, किसी से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. जो ऊपर मेंशन्ड जितने क्राइटेरिया है वो सब इन लोगों से नहीं होना चाहिए. Next, coming to section 149(7) which says that independent director shall give declaration कि वो सारे क्राइटेरिया मीट करता है जो इंडिपेंडेंस के ऊपर क्राइटेरिया है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, ये सब वो फॉलो करता है, ये उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7. कब? एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग इन विच ही इज अ डायरेक्टर. कोई बोर्ड मीटिंग जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें वो डायरेक्टर है वहां पे उसको डिक्लेरेशन देना होगा. एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर में पहली बोर्ड मीटिंग को ये डिक्लेरेशन देना होगा. एंड ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच अफेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर. ये जो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया अभी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे कहीं पे भी अगर ये अफेक्ट हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है अब, तो तभी उसको ये डिक्लेरेशन देना होगा. Next, section 149 subsection 9 says there are no stock options for independent director. He shall not be entitled to stock options. He may receive remuneration by way of sitting fees and company may reimburse expenses for participation in meeting and he may be paid profit related commission as may be approved by the members. Next, section 149 subsection 10 talks about the term of office for an independent director. So maximum 5 consecutive years tak he can be a independent director in the company and he is eligible for reappointment if
special resolution is passed for appointment and disclosure of such appointment is made in the board's report, then only he is eligible for reappointment. Next, section 149 subsection 11 talks about the cooling period of 3 years. When is this applicable? When the independent director has held the office for 2 consecutive terms. एक consecutive term में कितना साल है? 5 साल. 2 consecutive terms में 10 years. उसके बाद 3 साल का cooling period applicable है. Next, schedule 4 talks about the code for independent directors. What is the code? We'll just read it. Board of directors shall replace new independent director in place of retiring or removed independent directors within 3 months of such date. Independent director shall hold at least one meeting in financial year without the attendance of non-independent. इसमें non-independent directors को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो चीज़ होगी ना जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में सीक्रेट है, तो उनके पास नहीं जानी चाहिए वो. एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब ऑफिस के कोई भी मैनेजर्स या फिर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस मीटिंग में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग and the explanatory statement attached or annexed to this notice of general meeting called to consider such appointment shall indicate the justification for choosing such appointment of independent director. That you have chosen this independent director, तो उसके पीछे कोई justification होगा. That justification will be indicated in the explanatory statement and that will be annexed to the notice of general meeting कि हमने इनको क्यों independent director चुना है. So these were the code of conduct for independent directors. Next, coming on to section 151, small shareholders director. Now this is applicable to listed companies, and what is the meaning of small shareholders? Those who are holding shares of nominal value, not paid up value, nominal value of not more than 20,000. Now for appointment, small shareholders कितने? 1,000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लोअर. इनमें से जितने जो कम है वो नोटिस देंगे. दे शैल गिव नोटिस इन राइटिंग एटलीस्ट 14 days बिफोर मीटिंग. क्या बोलेंगे नोटिस में कि हमको हमने ये पर्सन को चुना है जिसको हमको स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनाना है. एंड दे विल साइन द नोटिस and the content of notice will be the intention to propose कि हमने इनको शेयर होल्डर बनाना है, SSD बनाना है. The name, address and number of shares held, the folio number of small shareholders and the person who जिसका नाम वो लोग recommend कर रहे हैं for the small shareholders director. Then the small shareholders director shall file consent with the company कि हाँ भाई मैं भी willing हूँ कि मेरे को बनना है SSD. And the SSD may be an independent director if eligible and gives declaration of independence. अगर वो eligible है और declaration दे रहा है independence का, he can be an independent director too. What is the tenure of the small shareholders director? It shall not exceed the period of 3 consecutive years and he shall not be liable to retire by rotation. On expiry of tenure, he is not eligible for reappointment. Next, the person shall not be SSD in more than 2 companies at the same time. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बार में 2 से ज़्यादा कंपनीज में he cannot be SSD. It shall be ensured that the second company, एक कंपनी में तो आप SSD हो और जो सेकेंड कंपनी में भी साथ में SSD हो, वो कंपनी का बिजनेस शुड नॉट बी कंपीटिंग और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ करंट कंपनी. फर्स्ट कंपनी के सामने वो कॉम्पिटिशन में या कॉन्फ्लिक्शन में नहीं होनी चाहिए सेकेंड में. द SSD नीड नॉट बी स्मॉल शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी. जरूरी नहीं कि वो स्मॉल शेयर होल्डर ही होना चाहिए, कंपनी का मेंबर होना चाहिए. कोई बाहर का मेंबर होगा तो भी चलेगा, लेकिन अपॉइंट करने वाले कौन होने चाहिए? वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए. देन ओनली ही विल बी कॉल्ड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. Now we'll be revising 2 important sections in the form of differences so that it can be revised in a quick manner and you'll be able to remember the differences too if by chance asked in the exam. So section 161 subsection 1 talks about additional director and subsection 2 talks about alternate director. Now coming to the applicability, first one, additional director applies to all company whether public or private and alternate director also applies to all company whether public or private. सबके लिए applicable है, additional हो या alternate director हो. Next, conditions for appointment for additional director. The board may appoint only if the article authorizes him to do so. Article में लिखा है तो ही board of the directors appoint कर सकते हैं additional director को. And the regulation 66 of table F authorizes the board to appoint if applicable to the company. आर्टिकल्स के अलावा रेगुलेशन 66 ऑफ टेबल F में अगर बोला है कि बोर्ड ऑथराइज कर सकता है तो देन ऑल्सो बोर्ड कैन अपॉइंट इट.
अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग के टाइम पे अगर आपको डायरेक्टर बनने में रिजेक्ट कर दिया गया, देन यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन एनी अदर मीटिंग्स. ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, जब ओरिजिनल डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया गए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ और मोर, देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस for a temporary period of time. तो बोर्ड में अपॉइंट alternate director in place of original director during his absence from India for a period of 3 months or more. Board can appoint if he is authorized by articles or if ordinary resolution is passed at a general meeting. And he cannot be appointed as alternate director if he is already holding alternate directorship of any other director. अगर कोई दूसरे डायरेक्टर का है तो आप फिर से किसी और मतलब एक साथ 2 alternate डायरेक्टर नहीं बन सकते हो. एंड इफ़ यू आर होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, कोई उसी कंपनी में अगर आप नॉर्मल डायरेक्टर हो, देन यू कैन नॉट बी ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन दैट कंपनी. एंड द ओरिजिनल डायरेक्टर हैज़ नो राइट टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर. जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ना, वो नहीं अपॉइंट करेगा जो इंडिया के बाहर गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को. नेक्स्ट, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एडिशनल डायरेक्टर इज द बोर्ड में अपॉइंट बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन और पासिंग रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. दोनों में से कोई भी तरह से एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है. ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए यू हैव टू पास रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन और रेजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग. ये 2 तरीके से ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट, कमिंग टू द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एडिशनल डायरेक्टर अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM और द लास्ट डेट ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड. अगर वो नहीं हुआ, अगर AGM नहीं हेल्ड हुआ तो जब होना चाहिए था वो वाला डेट, उनमें से विच एवर इज अर्लियर. एडिशनल डायरेक्टर है ना, ही वोंट रिटायर बाय रोटेशन. सो उसके अपॉइंटमेंट के लिए ना नॉर्मल डायरेक्टर वाला जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 160, वो 1 लाख का डिपॉजिट देना, वो वाले स्टेप्स वो फॉलो करने होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 160. And for alternate director, the term comes to an end on the return of original director. ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया वो वापस आएगा तभी टर्म खत्म हो जाएगा. एंड इट शैल नॉट एक्सीड द टर्म परमिसिबल टू द ओरिजिनल. अगर वो ओरिजिनल डायरेक्टर थोड़े टाइम में वापस नहीं आया टेम्पररी पीरियड में और उसका जो टेन्योर था ओरिजिनल डायरेक्टर का वो खत्म हो गया, तो उसकी के साथ साथ ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म भी खत्म हो जाएगा. इफ टर्म ऑफ original director expires before he comes back, then the provision of automatic reappointment shall apply to the original director but not to the alternate director. अभी वो आने से पहले टर्म खत्म हो गया तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी टर्म खत्म हो गया, लेकिन बट द ओरिजिनल डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो उसके लिए तो ऑटोमेटिकली वो रीअपॉइंटमेंट वाला क्लॉज अप्लाई हो जाएगा, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए नहीं होगा. Next, position of directors. The additional director will have the same rights, same power, same duties as every other director. And the alternate director will be a director in his own right and his interest is independent of the interest of original director. उससे कोई लेना देना नहीं, उसका इंटरेस्ट उससे एकदम अलग है. ऐसा नहीं कि भाई ओरिजिनल डायरेक्टर मेरे को अपने इसमें कंट्रोल करके रख रहा है. नो, ही इज इंडिपेंडेंट इन हिज ओन राइट्स. नेक्स्ट, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 इज फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. Casual vacancy to be filled by board by passing for resolution at board meeting and such appointment shall be subsequently approved by members in next AGM. जब भी कैजुअल वैकेंसी फाइल करनी होगी तो फर्स्ट बोर्ड फाइल करेगा बाय पासिंग रेजोल्यूशन एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन नेक्स्ट AGM. बोर्ड इज ऑथराइज्ड ओनली इफ ही वाज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि क्या होता है कि जो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो डायरेक्टर अगर वैकेंसी हो गया, कैजुअल वैकेंसी हो गया तो ही बोर्ड अपॉइंट कर सकता है. तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि जब भी बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया समझो कैजुअल वैकेंसी वाला बंदा, तो ये बोर्ड मीटिंग में हुआ, अभी ये वाला बंदा भी मर गया या कुछ हो गया जिसकी वजह से वापस कैजुअल वैकेंसी हो गया, तो अब ये वाला कैजुअल वैकेंसी वोंट बी फिल्ड बाय बोर्ड क्योंकि ये जनरल मीटिंग में नहीं हुआ था, ये बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया हुआ था जिससे वापस कैजुअल वैकेंसी आया एंड दिस कैजुअल वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड अप बाय बोर्ड. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है. सो if casual vacancy filled is again vacated, such vacancy cannot be filled by board under section 161 subsection 4. एंड द कैजुअल वैकेंसी पे जो बंदे को अपॉइंट किया था एज डायरेक्टर, ही शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर ऑन विच हीज प्लेस ही वॉज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस. जब तक जो कैजुअल वैकेंसी पे जिसको अपॉइंट किया उसके पहले जो डायरेक्टर था वो जब तक होल्ड करने वाला था ऑफिस तब तक ही अलाउड है होल्ड करना.
नेक्स्ट सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर को रिमूव करना है तो अंडर सेक्शन 169 शेयर होल्डर्स रिमूव करेंगे। कैसे? स्पेशल नोटिस देंगे। सेक्शन 115 में स्पेशल नोटिस जाएगा टू बी गिवन टू द कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग बट एटलीस्ट 14 days बिफोर जनरल मीटिंग। and इसमें the day will be excluded, which day on which notice was given and the day of general meeting. These days will be excluded in counting the 14 days. Next, it should be signed by members holding not less than 1% of total voting power or paid up share capital of 5 lakhs, whichever is lower. At least इतना तो होना चाहिए, वो वाले members sign करेंगे. Company shall give notice of intention to move resolution to all its members at least 7 days before the date of general meeting. General meeting के पहले 7 दिन पहले कंपनी सबको बताएगी कि ये ऐसा एक रेजोल्यूशन, एक डायरेक्टर को निकालने का रेजोल्यूशन हम लोग पास करने वाले हैं. Now company shall send the copy of written representation to every member and specify this fact of WR made by director in notice sent to members. अभी ये WR क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. किसने दिया? वो डायरेक्टर जिसको निकाला जा रहा है. इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो उसने अपना WR दिया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है, मेरे को निकाल रहे हैं, तो उसके बदले में उसको क्या बोलना है वो बोला है. तो ये चीज़ पहले तो सब मेंबर्स को जानी चाहिए, तो इसके कॉपीज दिए जाएंगे सब मेंबर्स को. इसके अलावा फैक्ट स्पेसिफाई किया जाएगा इन द नोटिस विच इज सेंड टू द मेंबर्स. एंड इफ दिस इज नॉट डन, नोटिस में नहीं बताया, तो डायरेक्टर बोल सकता है कि मेरा जो WR है वो पूरी मीटिंग में सबके सामने यू हैव टू रीड आउट. The director may require his WR to be read out at the meeting. Next, the director cannot be removed under certain circumstances. What are those? If he is appointed by tribunal under section 242 or by way of proportional representation under section 163 or nominee director who is appointed by financial institution. तो ये 3 डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते अंडर दिस सेक्शन. और डिफेमेटरी रिप्रेजेंटेशन अगर किया डायरेक्टर ने, मतलब वो WR में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें कुछ गलत चीज़ें बोली है जिससे कंपनी को डिफेम हो रहा है, या फिर उसने कोई गलत क्लेम किया है जो रॉन्ग है, जो फॉल्स क्लेम है, तो उसमें एक्शन लिया जाएगा. उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा कि जो WR है इट नीड नॉट बी सेंड टू मेंबर्स. मत भेजो मेंबर्स को. पहले भेजने वाले थे ना, तो अगर उसने कुछ गलत लिखा है उसके अंदर या उसने कुछ झूठ लिखा है उसके अंदर तो मत भेजो मेंबर्स को. एंड उसको रीड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है मीटिंग में. और जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, ये सब कॉस्ट वो डायरेक्टर पे करेगा जिसने ये गलत क्लेम किया है. So this is all about the directors chapter. I've tried to keep it short and summarized with my summary notes. The response and feedback for this video is very much important for me because based on the response of this video only I'll be coming up with more revision videos, otherwise not. So do give your feedback and response in this video, and do check out the description link. You'll get the notes in the description link. I hope your studies are going in full josh and full speed and everything, and all the very best for the JAN exams, and I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.